پاکستان کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور بے شمار قربانیاں دے چکا ہے۔ جہاں پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی، وہیں بھارت مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے اور دہشت گرد عناصر کی سہولت کاری میں ملوث پایا گیا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کو مالی امداد، اسلحہ اور تربیت فراہم کرنے میں ملوث رہی ہے۔ اس ویڈیو میں بھارت کی دہشت گردی کی پشت پناہی کے شواہد، طریقہ کار اور پاکستان کے جوابی اقدامات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں کر رہا ہے، اور کیا پاکستان کی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا ممکنہ طور پر کیسے جواب دے گی، اور پاکستان کے بھیانک جواب کے بعد خطے کے امن اور عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور ان سب سوالوں کا جواب جانتے ہیں۔ بھارت کی دہشت گردی میں شمولیت کے شواہد کی بات کی جائے تو کلبھوشن یادیو کیس سے بات شروع کرتے ہیں۔ کلبھوشن یادیو بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو منظم کرنے کے جرم میں گرفتار ہوا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کر رہا تھا اور بلوچستان اور کراچی میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ یہ بھارت کی براہ راست مداخلت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی۔ بھارت بلوچستان میں علیحدگی پسند گروہوں کو مالی معاونت اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے تاکہ وہاں عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA اور بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF جیسے گروہوں کو بھارت کی حمایت حاصل ہے، جو سیکیورٹی فورسز اور سی پیک منصوبوں پر حملہ کرتے ہیں۔ بھارتی سفارت خانوں میں قائم را کی سیل افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردوں کو منظم کرتے رہے ہیں۔ کراچی میں دہشت گردی۔ کراچی میں بدامنی پھیلانے کے لیے بھارت نے مختلف جرائم پیشہ گروہوں اور دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کیا۔ بھارتی فنڈنگ سے چلنے والی سازشوں کے تحت کراچی میں لسانی فسادات کو ہوا دی گئی، جس کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا۔ TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی مدد۔ تحریک طالبان پاکستان TTP کو بھارت کی پشت پناہی حاصل رہی ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں فوج، پولیس اور عام شہریوں پر حملے کروائے گئے۔ را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS کے گٹھ جوڑ نے دہشت گردوں کو مالی وسائل اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ سوات، وزیرستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے حملوں کے پیچھے بھارتی سازشیں واضح طور پر دیکھی گئیں۔ بھارت کی دہشت گردی کا طریقہ کار۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ نمبر 1، مالی معاونت۔ دہشت گرد گروہوں کو فنڈنگ فراہم کر کے انہیں منظم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلحہ اور ٹریننگ۔ دہشت گردوں کو جدید اسلحہ اور عسکری تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ نمبر 3، افغانستان کے راستے در اندازی۔ افغان سرزمین کو استعمال کر کے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، پروپیگنڈا وار۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کو دہشت گردوں کو حمایتی ملک ثابت کیا جا سکے۔ نمبر 5، فرقہ واریت اور لسانی فسادات۔ بھارت پاکستان میں مذہبی اور لسانی اختلافات کو ہوا دے کر اندرونی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، پاکستان کے جوابی اقدامات۔ پاکستان نے بھارت کی دہشت گردی کا مؤثر جواب دینے کے لیے مختلف سطحوں پر اقدامات کیے ہیں۔ الف،
फौजी और इंटेलिजेंस ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद के जरिए दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ISI ने भारत के एजेंटों के नेटवर्क को बेनकाब करके कई दहशतगर्द कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। सरहद की निगरानी को मजीद सख्त किया गया ताकि दहशतगर्दों की दरअंदाजी को रोका जा सके। सफारती महाज पर भारत का पर्दाफाश। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी में भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत पेश किए। भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से एक तफसीली डोजियर तैयार करके मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर पेश किया गया। चीन, तुर्की और दीगर ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सफारती दबाव बढ़ाया। अभी चंद दिन कबल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग में पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री की शहादतों पर गहरी तशवीश का इजहार किया, बल्कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की भी करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान ने कानून साजी और सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए गए ताकि भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। इससे पहले पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए मौसर पॉलिसियां अपनाई गई थीं। सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडा का मौसर जवाब देने के लिए इक़दामात किए गए। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं जिन्हें आलमी बिरादरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत की खुफिया एजेंसियां न सिर्फ दहशतगर्द गिरोहों को माली और अस्करी मदद फराहम कर रही हैं, बल्कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा भी कर रही हैं। पाकिस्तान ने इन तमाम खतरात का भरपूर मुकाबला किया है और आइंदा भी अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाता रहेगा। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो भारत की इस दहशतगर्दाना पॉलिसी का नोटिस दे और खित्ते में अमन कायम करने के लिए भारत को इसके इक़दामात पर जवाबदेह ठहराए। भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्पनाही, एक तफसीली तज्जिया। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर पेश करता है, मगर इसका असल चेहरा मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द गिरोहों की पुष्पनाही, अलहदगी पसंद तहरीकों में मुदाखलत और पड़ोसी ममालिक में बदअमनी फैलाने की साजिशों से बेनकाब हो चुका है। भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई दीगर ममालिक में भी खुफिया एजेंसियों के जरिए दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। इस मज़मून में भारत की आलमी दहशतगर्दी में मुदाखलत के शवाहिद और इसके तरीक़ेकार पर रोशनी डाली जाएगी। नंबर 1, जनूबी एशिया में भारतीय दहशतगर्दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को माली और अस्करी मदद फराहम कर रही है। कलभूषण यादव, जिसे भारतीय एजेंटों की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस है। बलूचिस्तान, कराची और खैबर पख्तूनख्वा में भारत के हिमायत याफ्ता गिरोह तकरीब कारी कर रहे हैं। नेपाल में भारतीय मुदाखलत। भारत नेपाल की सियासत में मुदाखलत करता आया है और वहां के दाखिली मामलात में असर व रसूख रखने की कोशिश करता है। नेपाल में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इंतशार पैदा करने के लिए मुख्तलिफ गिरोहों को इस्तेमाल किया है, खासतौर पर भारत नवाज कुव्वतों को मजबूत करने की कोशिश की है। श्रीलंका में दहशतगर्दी। भारत का माजी श्रीलंका में भी दहशतगर्द गिरोहों की पुष्टपनाही से जुड़ा रहा है। श्रीलंकन तामिल बागियों LTTE को भारत की हिमायत हासिल थी, जिसने 1980 और 1990 की दिहाई में श्रीलंका में कई दहशतगर्द हमले किए। श्रीलंकन हुकूमत ने मुताद्दिद बार भारत पर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्जाम आयद किया है। मशरिक़ वुस्ता में भारतीय खुफिया सरगर्मियां।
मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में भारतीय नेटवर्क में भारत के बाज गिरोह खलीजी मुमालिक में दहशत गर्दी, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं। हालिया वर्षों में UAE में भारतीय शहरियों को दहशत गर्दों से रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में भारतीय मुदाखलत। सऊदी अरब में दहशत गर्द गिरोहों को माली मुआवनत देने के लिए भारतीय खुफिया नेटवर्क सरगर्म रहा है। कई मौके पर भारतीय शहरियों को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया है। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के खिलाफ भारतीय दहशत गर्दी। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं को निशाना बनाया। सन 2023 में कनाडा में खालिस्तान तहरीक के एक रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल के बाद कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम लगाया, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हो गए। कनाडा में भारतीय सिफारतखाने की निगरानी में काम करने वाले अफराद की खालिस्तान तहरीक के खिलाफ साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। अमेरिका और यूरोप में भारतीय तखरीबी सरगर्मियां। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय एजेंट्स की मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द गिरोहों से ताल्लुक की निशानदही की है। यूरोप में भी भारत की मुदाखलत के कई शवाहिद सामने आए। खास तौर पर अलहदगी पसंद रहनुमाओं के खिलाफ भारतीय एजेंट्स की कार्रवाइयों की खबरें मौसूल हुई हैं। अफ्रीका में भारतीय मुदाखलत। भारत ने कई अफ्रीकी ममालिक में सियासी इंतशार पैदा करने के लिए खुफिया नेटवर्क्स को इस्तेमाल किया। बास अफ्रीकी ममालिक में भारत के तिजारती मफादात को बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए गए, जिनमें मकामी गिरोहों को माली मुआवनत और हथियार फराहम करना शामिल है। भारत की दहशतगर्दी का तरीक़ाकार। भारत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी और तखरीबकारी को फैलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है। नंबर 1, दहशतगर्द गिरोहों की माली मुआवनत। भारत कई अलहदगी पसंद और शिद्दत पसंद गिरोहों को फंडिंग फराहम करता है ताकि वो अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकें। नंबर 2, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारत अक्सर झूठे हमले करवाता है और उनका इल्जाम मुखालिफ ममालिक पर लगाकर प्रोपेगेंडा करता है। नंबर 3, खुफिया एजेंट्स और सिफारतखाने का इस्तेमाल। भारतीय सिफारतखाने और कौंसल खाने अक्सर खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी को फरोग देते हैं। नंबर 4, प्रोपेगेंडा मुहिम। भारत आलमी सतह पर सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स के जरिए गलत मालूमात फैलाने और मुखालिफ ममालिक के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने में मुलविस है। भारत न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। आलमी बिरादरी को भारत की इन सरगर्मियों का नोटिस लेना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त इक़दाम करने चाहिए ताकि दुनिया में दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हो सके। क्या पाकिस्तान भारत की बिला जवाब जाहरियत के लिए तैयार है? इस अहम तरीन सवाल का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आज का पाकिस्तान भारत की किसी भी किस्म की जाहरियत का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देगा बल्कि इसकी शिद्दत इतनी भयानक होगी कि भारत के टुकड़े होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में मुतादिद अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं जो भारत से आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं, जिनमें सबसे अहम खालिस्तान की तहरीक है। नागालैंड मणिपुर जैसी मूवमेंट भारत में सरगर्म अमल है। दिफा और फौजी तनासुर में तजिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी किसी से पोशीदा नहीं। दोनों ममालिक एटमी ताकत के हामिल हैं और किसी भी मुमकिना जंग के संगीन नताइज हो सकते हैं। भारत की माजी की जारहाना पॉलिसियों और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर मुसलसल खिलाफ वर्जियां करता रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, फौजी तैयारी और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का तजिया किया जाए तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार की जाती हैं। उनकी तैयारी के
चंद अहम पहलू दर्ज झैल हैं। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की छठी बड़ी फौज है, जिसके पास जदीद हथियार, तरबियत याफ्ता कमांडोज और आला दिफाई हिकमत अमली मौजूद है। पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल भारतीय खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जैसे दिफाई मंसूबे भारत के स्ट्राइक क्रॉप और अज़्म नौ मुमकिन हमलों को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। पाक फिजाइया जदीद फाइटर जेट जैसे F-16, JF-17 थंडर और मिराज J-10C तैयारों से लेस हैं। सन 2019 में भारत के बालाकोट हमले के बाद पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के जरिए भारतीय फिजाइया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें भारत के 2 तैयारे मार गिराए। इसके बाद पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10C तैयारे भी अपनी फजाइया में शामिल कर दिए हैं, जो भारत के राफेल तैयारों का मौसर जवाब दे सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की ड्रोन तैयारों की टेक्नोलॉजी दुनिया में तस्लीम की जाती है। पाकिस्तान के पास जंग के मैदानों में तबाही और बर्बादी मचाने वाले हर तरह के ड्रोन तैयारे हैं, जिनमें शापर सीरीज के ड्रोन तैयारों ने दुनिया की तवज्जो हासिल की है, जबकि तुर्किया और चीन से लिए गए ड्रोन तैयारे अलहदा हैं। पाकिस्तान नेवी के पास जदीद जंगी जहाज, आबदोजें और मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। इस वक्त पाक बहरिया के पास मुख्तलिफ अक़साम के 45 बहरी जहाज हैं, जिनमें 6 ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तानी बहरिया के पास 5 आबदोजें मौजूद हैं, जबकि 8 आबदोजें और मुतादिद जंगी जहाज अभी तैयारी के मराहिल में हैं। हंगोर क्लास आबदोजें बाबर 3 क्रूज मिसाइल, जो समंदर से समंदर और जमीन पर भी हमला आवर होने की सलाहियत रखते हैं, जिनका दिफा में अहम किरदार है। पाक बहरिया का सी पैक के जरिए बहरे हिंद में स्ट्रेटेजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद बढ़ गया है। पाकिस्तान का दिफाई नजरिया मिनिमम क्रेडिबल डिटरनेंस पर मबनी है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क के पास इतनी एटमी सलाहियत होनी चाहिए कि दुश्मन किसी भी हमले से पहले 100 बार सोचे। पाकिस्तान के पास अबाबील जैसे MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल मौजूद हैं, जो एक साथ मुतादिद हदफ को निशाना बना सकते हैं। नसर मिसाइल खास तौर पर भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का जवाब देने के लिए तैयार किया गया है, ताकि किसी भी महदूद जंग को रोका जा सके। पाकिस्तान की जौहरी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पर मबनी नहीं, बल्कि मुकम्मल दिफाई और जवाबी हिकमत अमली रखती है। यहाँ बात आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी साबित शुदा है और इंतहाई जदीद तरीन खतूत पर कायम है। S-400 दिफाई निज़ाम हो या दीगर भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, पाकिस्तान की मिसाइल भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने की पूरी सलाहियत रखते हैं और अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए खुदकार सलाहियतों के हामिल हैं। भारत की मुमकिना जहरियत और पाकिस्तानी हिकमत अमली। भारत की हालिया पॉलिसियां पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती हैं, जिनमें शामिल हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल फायरिंग और सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। भारतीय मीडिया और हुकूमत की इश्तियाल अंगेज बयानात जो खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। भारत का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, जिसके तहत वो मुख्तसर मगर शदीद हमले की हिकमत अमली रखता है। पाकिस्तान ने इन खतरात के पेश नजर दर्जा झैल हिकमत अमली तैयार की है। नंबर 1, मुकम्मल दिफाई तैयारी। पाक फौज, फजाइया और बहरिया हर वक्त अलर्ट है और किसी भी हमले को नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। नंबर 2, डिटररेंस पॉलिसी। जौहरी और रिवायती हथियारों के जरिए दुश्मन को हमले से बाज रखने की पॉलिसी। नंबर 3, सिफारती महाज। पाकिस्तान आलमी सतह पर महारती जहरियत को बेनकाब करने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। नंबर 4, हाई टेक वॉरफेयर। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, साइबर डिफेंस
اور الیکٹرانک وارفیئر پر بھی کام کر رہا ہے۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی بلا جواز جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، چاہے وہ روایتی جنگ ہو، فضائی تصادم ہو، سمندری محاذ پر چیلنج ہو یا جوہری ڈیٹرنس کا معاملہ ہو۔ پاکستان کی مسلح افواج اور دفاعی ادارے ہر ممکن خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب نہ صرف بھرپور انداز میں دیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے عالمی سطح پر بھی سفارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔